number 1 is if your roots are real and different. If roots are real and different of the auxiliary equation f of d is equal to 0, then how to write complementary function? C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x plus C3 e raised to m3x plus so on Cn e raised to mnx. When we write this CF, if your roots are real and different. What is the case number 2? If your roots are real and equal. For example, first two roots are equal, real and equal, m1 is equal to m2, and remaining m3, m4 up to mn, all these roots are different. Then for first two repeated root, how to write CF? C1 plus C2x e raised to m1x plus C3 e raised to m3x plus so on Cn e raised to mnx. This is case number 2. And if first three roots are repeated, all roots are real, and out of these roots, first three roots are real. For first three root, how to write CF? In the bracket C1 plus C2x plus C3x square e raised to m1x plus, for remaining non-repeated root, we write separate term C4 e raised to m4x and so on Cn e raised to mnx. Similarly, in case all roots are real and repeated, m1 is equal to m2 is equal to m3 and so on is equal to mn. Then for all this repeated root, CF is in the bracket C1 plus C2x plus C3x square plus C4x cube plus so on Cn x raised to n minus 1 into e raised to m1x. Okay. And case number 3, if your roots are imaginary and non-repeated. Imaginary, that means complex number. If your roots are complex and non-repeated. Suppose your roots are alpha plus minus I beta. First root will be alpha plus I beta. Second one is alpha minus I beta. In this case, complementary function written as e raised to alpha x in the bracket C1 cos of beta x plus C2 sin of beta x. So now we will solve fourth problem on case number 3. In the last lecture, we solved 3 problems. Now problem number 4. What is the problem? Solve fourth order linear differential equation. D raised to 4 minus 16y is equal to 0. So your first step is write down auxiliary equation. Here auxiliary equation is d raised to 4 minus 16 is equal to 0. Okay. Now we want solution of this equation. Anyhow, you use any method, we will get 4 रूट ऑफ इक्वेशन 1. अब वो रूट कौन से, रियल है, रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो बाद में पता चलेगा. सबसे पहले हमें 4 रूट चाहिए. कोई भी मेथड यूज कर लो आप. तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ. कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं. फॉर दिस आई राइट दिस 16 को मैंने रीराइट किया है 2 स्क्वेयर का स्क्वेयर. 2 स्क्वेयर इज 4, 4 का स्क्वेयर इज 16. लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने 16 को अलग से लिखा है 2 स्क्वेयर का स्क्वेयर, एंड d रेज टू 4 कैन बी रिटन एज d स्क्वेयर का स्क्वेयर. क्लियर? नाउ यूज दिस फॉर्मूला a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर ऑन इक्वेशन 2. सो व्हाट विल गेट? d स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर. हाँ, ये समझ में आया ना ये फॉर्मूला आपको? सिंथेटिक डिवीजन से करने जाओ तो वो बहुत लंबा होगा. ये पहले भी हमने प्रॉब्लम किया है, इसके रूट फाइंड आउट किए. अभी सिर्फ इसको सॉल्व करना है एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के. यू कैन सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन ऑल्सो. फर्स्ट रूट बाय ऑब्जर्वेशन आपको पता चल ही जाता है. 2 इज द फर्स्ट रूट ऑफ दिस, -2 ऑल्सो 1 रूट, बट ये बहुत लंबा होगा.
तो जहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं वो करनी है हमें, तो यहाँ पे ये मेथड यूज कर सकते, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ना। दिस कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर इज 4 is equal to 0 and similarly d square minus 4 is equal to 0. Again here we get two different quadratic equation. आपने ऑब्जर्व किया तो रूट फैक्टर मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। फिर से यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप डायरेक्टली इसके रूट लिखो या 2-3 स्टेप बढ़ा के लिखो, हमें सिर्फ रूट से मतलब है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इन द फर्स्ट केस शिफ्ट दिस 4 टू द राइट हैंड साइड, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4। इन द सेकेंड केस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक तो यहाँ ऐसे करो, या अगेन हियर इन द सेकेंड केस यू कैन यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, इन द बोथ द इक्वेशन यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। इन द फर्स्ट केस what we get, d is equal to plus minus 2i, my root of -4 that means plus minus 2i। in the second case यहाँ पे मिलेगा आपको root 4 is simply 2, so d is equal to plus minus 2। क्योंकि यहाँ पे ये d square is equal to -4 ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट मिलने ही चाहिए, इसीलिए अंडर रूट जब हम स्क्वायर रूट लिया तो हमने प्लस माइनस लिया। यहाँ पे भी इन द सेकेंड केस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो ये सॉल्व कर रहे हैं मतलब हमें दो रूट डी के दो वैल्यू मिलने चाहिए। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 2 किया है मैंने, ठीक है। तो हमें 4 रूट मिले डी के, दिस प्लस माइनस 2i कैन बी रिटन एट 0 प्लस माइनस 2i, थर्ड रूट इज 2, फोर्थ रूट इज -2। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ आउट ऑफ दिस 4 रूट 2 रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, दो रूट रियल है एंड अलग अलग है 2 -2, एंड दो रूट है कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट। तो ये दो 2 एंड -2 इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, तो यू विल यूज फर्स्ट केस, तो c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू -2x प्लस, अब ये थर्ड एंड फोर्थ रूट प्लस माइनस 2i के लिए आपको CF लिखना है, तो हाँ, तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे e रेज टू अल्फा x, बट e रेज टू अल्फा x इज 0, तो वो नहीं लिखा है, डायरेक्टली ब्रैकेट में लिखा है c3 cos ऑफ बीटा x प्लस c4 साइन ऑफ बीटा x, जबकि बीटा की वैल्यू है 2। क्लियर? And again if you observe equation 1, it is given equation, it is a homogeneous linear differential equation, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, इसीलिए आपका सॉल्यूशन नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सॉल्यूशन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। therefore required solution of given linear differential equation is y is equal to c1 e raised to 2x plus c2 e raised to -2x plus c3 cos 2x plus c4 sin 2x. If you observe this solution contain 4 arbitrary constant, c1, c2, c3, c4, ये 4 कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि ये किसका सोल्यूशन है? फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। वी नो दैट nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल होगा तो उसके सोल्यूशन में n कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सोल्यूशन में 4 कांस्टेंट होने ही चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहे। केस नंबर 4 इज your roots are complex number and repeated. If the roots of auxiliary equation f of d is equal to 0 is imaginary and repeated imaginary, that means if m1 m2 is equal to alpha plus I beta and m3 m4 is equal to alpha minus I beta are two complex root, then complementary function of f of dy is equal to 0 is given by CF is equal to, यहाँ पे we get 4 रूट, 4 रूट मिले, कौन से? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, फिर से अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा ये रिपीट हुआ है। तो रिपीटेड के लिए कैसे लिखेंगे? अगेन e रेज टू अल्फा एक्स, वे अल्फा इज रियल पार्ट, अल्फा क्या है? रियल पार्ट ऑफ रूट्स, इन द ब्रैकेट c1 प्लस c2x
cos of beta x plus C4 plus C4x sin of beta x। यहाँ पे cos of beta x का कोएफिशिएंट क्या लिखा है, C1 plus C2x, क्योंकि ये जो रूट है वो 2 बार रिपीट हुआ है। अगर 3 बार रिपीट होता तो हम क्या लिखते हैं, C1 plus C2x plus C3x square cos of beta x एंड सो ऑन। दोनों भी cos of beta x sin of beta x दोनों का कोएफिशिएंट आप देख लो क्या है, C1 plus C2x, ये cos of beta x का कोएफिशिएंट एंड sin of beta x का कोएफिशिएंट क्या है, C3 plus C4x। ये 4 कांस्टेंट हो गए क्योंकि हमने 4 रूट कंसिडर किए, इसका मतलब हम लोग फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इसका मतलब उसके CF में 4 कांस्टेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने ये ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, d⁴, मतलब ये फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, एज इट इज सॉल्व करेंगे। सो योर फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन -1 +-, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे, रूट से -1 +-, d² प्लस 2d प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर है मतलब ये ब्रैकेट का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू d² प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक ब्रैकेट के रूट फाइंड आउट करेंगे, वही रूट दूसरे ब्रैकेट के होंगे, है ना। यहाँ पे 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रैकेट बोथ आर सेम, सो हियर वी जस्ट फाइंड आउट रूट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, सिर्फ इसके रूट फाइंड आउट करेंगे और फिर यही रूट सेकेंड ब्रैकेट के होंगे। ठीक है, अब ये रूट फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, तो पहले ABC की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो। व्हाट इज A, d² का कोएफिशिएंट A दैट इज 1, d का कोएफिशिएंट B दैट इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म C दैट इज 2 अगेन। तो ये फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ हियर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिलेगा d इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू क्या है, 2, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 इज 8 अपॉन 2। दिस इज सेम एज -2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 8 is -4 upon 2. This root -4 can be written as root -1 into root 4. -2 as it is, plus minus. Again, we know that root of -1 is I and root of 4 is 2 upon 2. Take 2 common from the numerator and cancel it. So finally, we will get value of D, which is -1 plus minus I. Okay. ये इमेजिनरी रूट मिले, ये सिर्फ एक ही ब्रैकेट के रूट मिले 2। सिमिलरली यही रूट रिपीट हो रहे हैं सेकेंड ब्रैकेट के लिए, इस ब्रैकेट के लिए भी ये रूट रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स D इज इक्वल टू फाइनली our 4 roots are D is equal to minus plus minus I and -1 plus minus I। तो ये हमारे पास 4 रूट मिले, चारों के चारों इमेजिनरी रूट से एंड रिपीटेड है, मतलब -1 प्लस I, ये -1 प्लस I, ये 2 बार रिपीट हुआ, उसके बाद -1 माइनस I, -1 माइनस I, ये भी रिपीट हुआ। सो कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स रूट विद द स्टैंडर्ड रूट अल्फा प्लस माइनस I bit, therefore alpha is equal to, after comparison you will get value of alpha and beta. What is the value of alpha? Alpha is equal to -1 and beta is equal to +1. -1 beta is equal to 1. वेरी गुड। सो सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला है ही CF का, यहाँ पे सिर्फ अल्फा की वैल्यू डालनी है एंड बीटा की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, e raised to
e raised to minus x, c1 plus x, c2 cos x, c3 plus x, c4 sin x. Therefore CF is equal to e raised to minus x in the bracket. यहाँ पे ब्रैकेट की पोजीशन देखो, स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, उसके बाद उसके अंदर फिर से राउंड ब्रैकेट में c1 प्लस c2 x cos x. इसका मतलब क्या है, राउंड ब्रैकेट का ये जो है ना c1 प्लस c2 x, ये दोनों टर्म को cos x मल्टीप्लाई प्लस फिर से ये राउंड ब्रैकेट में मैंने c3 प्लस c4 x लिखा है, उसके बाद sin x, मतलब ये c3 एंड ये c4 x दोनों को sin x मल्टीप्लाई, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है. ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, e रेस टू माइनस एक्स, ये हर एक, ये चार जो टर्म दिख रहे हैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई. तो ब्रैकेट की पोजीशन भी आप देख लो. क्लियर?